Yes, we are going to discuss with a new topic that is about the number system. Have you heard about this term? You all have heard about this term since you have studied the number system in grade 8. In your grade 8, you have done number system. Right or wrong? You remember about what is the number system and why we use the number system. Number system is what basically once you talk about in your daily life, we talk about like what is your age. So you say, sir, my age is 13 years, or you will say my age is 14 years. So you are going to write that 13 or 14. Okay, so 131415, this is a number. A system of writing to express number. Exactly. Okay, and if I write like, okay, I'm going to share a new screen to you as well. We will deal in board. Okay. Once you will see my screen, so please inform me. I'm going to share a board with you. What you can see right now, please respond me through the mic. So as I can't see the other application on my screen, so I could not see your chat response. So please tell me what you can see right now on your screens. Anyone please respond. Could you see the white screen, a whiteboard, notebook? Yes, sir. Okay, fine. So now we are discuss about the number system. Number system is basically the chapter that we need to discuss. So here I'm going to write about the number system. Now, from here you can see what is the number system. The number system basically represents the way you represent the number, and it has different categories. The first we call as decimals. Decimals are the one. Okay, is there any other name we give to the decimal? There is another representation of a decimal number system. You know about it? हम डेसिमल को एक और नाम भी देते हैं. What is that name? वो नाम क्या होता है? वो denary होता है. Very nice, that very nice. So we give another name to the decimal and we call this one as denary. So I'm going to write a denary here. So I'm going to write decimal or denary. Okay, and the deci basically represents 10. What is represented by the deci? Deci represents 10. So decimal number 1 is the number that contains number from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So a decimal number system is a number system that represents a number from 0 till 9. You need to remember this one. There is another type of a number system. What is that number system? We have 4 types of number system, out of which 3 is in your syllabus. In grade 8, you studied 4 types of number system. After the denary, what is the other number system you have? Any guesses, please? This is binary. Okay, very nice. So another type of a number system we have is the binary number system. So that bi represents 2. Bi represents 2. So we have a number system. We call this one as 0 and 1. So that is basically binary number system. Decimal we use in daily life.
decimal we use in our daily life, and binary we use when we talk about electronic equipments and computers. We use binary number system. Okay. So the third we have is octal is the one which we basically don't have in our syllabus. There is another number system, that is the octal number system. As the name suggests, octal has a value that starts from 0 and ends at 7. Octal represents age. So once you start with 0 and ends up by 7, so that basically becomes an octal number system. And we have the next one as hexadecimal. Okay. So hexadecimal means you all know that decimal is from 0 to 9. दुनिया में जितने भी नंबर 10 यानी 9 तक तो डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद जितना कुछ है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन और कॉन्कैटिनेशन ऑफ नंबर होती है. मैं दोबारा रिपीट कर दूं, किसी के जहन में ये सवाल आ जाए कि आप तो 9 तक बता रहे हैं सर, हम तो 10 भी लिखते हैं, 11 भी लिखते हैं, 12 भी लिखते हैं. तो बेटा वो जो 12 आप लिखते हो वो 1 और 2 से मिलके बना होता है. 0 से लेकर 9 के अलावा कोई दूसरा डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता. 100 कह दो, 1000 कह दो, 1 लाख कह दो, कुछ भी कह दो, वो सब का सब बना इसी से होता है मिलके, और वो हम अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज कर रहे होते हैं. हेक्साडेसिमल की जब हम बात करते हैं, हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं? एनीवन विल गेस अबाउट इट कि हम हेक्साडेसिमल को क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमें हेक्साडेसिमल की जरूरत क्यों है? क्या कोई बताएगा इसके बारे में? कोई भी आपके जहन में जो बात हो, यू कैन शेयर टू मी. प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्सेस. देखो क्लास इंटरेक्टिव उसी वक्त होगी जब आप कॉपरेट करोगे, आप जवाब दोगे. नेवर गेट शाय ऑफ गिविंग द रिस्पॉन्सेस एंड नेवर गेट शाय दैट माय आंसर वुड बी रॉन्ग. यू डोंट हैव टू थिंक ओवर इट. आप गलत भी बोलो कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट यू स्पीक अप. तो आपने बोलना जरूर है. आप बोलोगे तभी आपको समझ में आना शुरू होगा. हमें हेक्सा की जरूरत क्यों होगी, और क्या हेक्साडेसिमल किसी ने यूज होते हुए देखा है कहीं? कि हम कहाँ हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करते हैं? हाँ या नाम ही बता दो कि सर नहीं पता, नहीं आता, कुछ तो बोलो बेटा. हेक्सा इज मच इजियर देन बाइनरी. हाँ, ये बात आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्सा जो होती है वो बाइनरी के मुकाबले में आसान है. अब कैसे? अब आप कहते हो कि सर ने लिखा 0010. अब इसके लिए ना एक कैरेक्टर एक बाइट होता है, तो अब 0010 का मतलब है कि 4 बाइट आपका ले रहा है बाइनरी. लेकिन अगर मैं उसकी जगह इन टर्म्स ऑफ हेक्सा लिखूं, अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ. ओके, आप इसको ऐसे कंसीडर करो 1111, तो ये 4 बाइट्स ले रहा है. इसको, ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी की. आप बाइनरी में कोई नंबर रिप्रेजेंट करोगे तो आप कहोगे 1111. बट वंस यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन हेक्सा, तो हेक्सा में आप इसकी जगह एफ लिख दोगे. अब आप कहोगे सर एफ कहाँ से आया? ऐसे आया कि सर ने भी आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में डेसिमल रिप्रेजेंट करता है 10 को, और हेक्सा आप कहते हो 6 को. तो 0 से लेकर 9 के बाद जो रिमेनिंग 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो आते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर कि ए बराबर होता है 10 के, बी 11, सी 12, D13, E14 एंड F15 होता है. ये आपको थ्रू आउट याद रखना होगा जब तक हम पढ़ते रहेंगे नंबर सिस्टम को. तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि आफ्टर 9 ए से लेकर एफ तक जो भी डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लेकर एफ तक जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बस वो 15 तक ही रहते हैं. अब ये सवाल भी आ सकता है सर आगे क्यों नहीं जाते GHI तक? इसलिए कि हेक्साडेसिमल ही बना है और हेक्साडेसिमल ही इम्प्लीमेंटेड है. अभी आगे कोई नया नंबर सिस्टम आया नहीं है. इसका फायदा ये होता है कि अगर आप W3 स्कूल एक वेबसाइट है, W3 स्कूल्स, इसके ऊपर ना बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं. तो इसमें HTML भी एक कोर्स है. HTML में जब आपको कलर रिप्रेजेंट करना होता है ना, आप वेबसाइट्स खोलते हो, वेबसाइट के ऊपर आपको कलर्स मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर मिलते हैं. ऊपर हेडर पे कुछ अलग कलर है, बॉडी पे कुछ अलग कलर है. वो हर कलर की रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है ना वो हेक्सा के थ्रू होती है.
दुनिया में जो भी कलर बनता है वो कलर बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन ब्लू। किसी ने लिखा, ये सही लिखा है कि हेक्सा इज मोर अंडरस्टैंडेबल एंड सिंप्लीफाइड। बिल्कुल, जहां आप 4 बाइनरी लिख रहे हो वहां एक हेक्सा लिख दो, तो रिप्रेजेंटेशन आसान हो गई ना, तो इजियर होता है। अच्छा, जो भी मैं बात आपसे कह रहा था, देखो जो दुनिया में कलर्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आर, जी और बी, रेड ग्रीन ब्लू। और एक स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ब्लैक के लिए के इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा इसको ब्रीफ सा करूंगा। देखो, आर का कुछ कॉम्बिनेशन, जी का कुछ कॉम्बिनेशन और बी का कुछ कॉम्बिनेशन, इनको मिलाओ तो कलर्स बन के मिलते हैं। जैसे मुझे लेट सपोज पिंक चाहिए, तो पिंक के लिए मुझे रेड को थोड़ा ज्यादा रखना होगा, तो मैं रेड के लिए जो वैल्यू रखता हूँ, लेट सपोज मैं रेड की वैल्यू रखता हूँ 234, और ग्रीन की वैल्यू रख देता हूँ लेट सपोज 156, और ब्लू की वैल्यू रख देता हूँ 171। तो ये लेट सपोज कॉम्बिनेशन जो है ना, ये मुझे बना के पिंक देगा। तो जब आप कलर कोड को रिप्रेजेंट करते हो एचटीएमएल में, तो आप इस तरह से लिखते हो हैश। हैश का मतलब आप हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी आप हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करोगे, आप हेक्साडेसिमल का साइन लगाओगे, हैश का साइन लगाओगे। और आपने कलर को रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आप ऐसे करोगे ना, एफ एफ 3B9C, तो ये कोई ना कोई एक कलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एचटीएमएल में। तो आप इससे, आपको ये फायदा होता है कि आपके ना कॉम्बिनेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। आप पिंक के भी लाइक थाउजेंड ऑफ कलर पिंक के शेड्स बना सकते हो। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल जो है ना, वो यहाँ पे कलर कोडिंग की रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होता है। तो आप ये कह सकते हो कि हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलर कोडिंग इन HTML। इसकी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। जैसे मैक एड्रेसेस वगैरह में हेक्साडेसिमल यूज होता है, मेमोरी डम्प्स में यूज होता है। मेमोरी डम्प आगे की बात है, हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली मुझे आपको जो पहली चीज बतानी थी बेटा, वो ये बतानी थी कि देखो नंबर सिस्टम ये सब होता है जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी तक आपको जो समझना है वो ये समझना है कि नंबर सिस्टम इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन of how the numbers can be represented in our daily life or in computer or in different application। तो हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो 3 चीजें हैं, एक डेसिमल है, एक बाइनरी है, एक हेक्सा है। अब हम आ जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर। अब हमें ये देखना है कि हाँ कन्वर्जन कैसे होगी, कन्वर्जन कैसे होगी वो हम देखते हैं। कन्वर्जन देख लेते हैं। ओके, कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जन के लिए ऐसे होगा कि मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, उस टेक्निक से आप आराम से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कन्वर्जन। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अच्छा, ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ये आपने करना है। ठीक है, आपने डेसिमल टू बाइनरी जो है, आपने पहले नंबर सिस्टम की हेडिंग डालनी है और डेसिमल टू बाइनरी आपने इस तरह से लिख लेना है। अब कंसीडरिंग के एक नंबर है हमारे पास और वो नंबर है 157। आपको सवाल इस तरह से गिवन होगा 157, और ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, इसको कहते हैं बेस। 157 के नीचे अगर आपने बेस 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब नंबर डेसिमल में। और यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद बाइनरी लिखा हुआ है बेस में, तो वो कह रहा है कि भाई डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, वो आपसे ये कह रहा है। तो ये बातें तो हो गई। अब हमने आगे जाना है। आगे हम क्या करते हैं, आगे जाके हम नंबर उड़ाते हैं 157। इसका बहुत आसान तरीका है, देखो 3 स्टेप में ये काम हो जाएगा। नंबर 1, आपने नंबर लिखा, और क्योंकि आपको बाइनरी में जाना है तो आप 2 से उसको डिवाइड करोगे, एलसीएम लोगे, और आपने 2 लिखा। अब मैं सिंपल देखो क्या कर रहा हूँ, 2 7 जा 14 होता है, एक बचेगा, वो इसको भी 17 बनाएगा, और मैं 2 8 जा 16 के लिख के जो रिमाइंडर होगा उसको राइट पे लिख दूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ क्वेश्चन 157, मैं लिखता हूँ 2 7 जा 14, एक बच रहा है, वो एक राइट साइड पे जाके इसको 17 करेगा। 2 8 जा 16 एंड द वन रिमेन्स दैट आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन द राइट साइड। मैं उसे राइट साइड पे रख दूंगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बेटा अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही है आपको?
Now tell me, could you see the screen? ओके सो आप डायरेक्ट माइक पे मुझे बता दिया करो, बिकॉज वंस आई एम इन अ फ्लो तो मुझे नहीं पता चलता कि हो सकता है किसी वजह से जो है ना वो राइटिंग पैड पे हाथ लग गया होगा तो फिर वो स्क्रीन चली गई होगी। तो आप फौरन माइक पे मुझे बता दो। अब तो शो हो रही होगी आई गेस। अब्दुल्ला, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन स्क्रीन? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो 157 तो था, 78 था, 2 7 का 14, 1 बच रहा है, 1 राइट पे गया, 17 किया, 2 8 का 16, 1 बच गया। अगेन हम लिखते हैं 2 और फिर हम लिखते हैं 2 3 जा 6, एक बच रहा है, 18 करेगा, 2 9 जा 18। अब जब 2 9 जा 18 हो गया तो पूरा पूरा डिवीजन हो रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो इसलिए मैं 0 लिखूंगा। फिर एग्जैक्टली 2 1 जा 2, 1 बच रहा है, इसको 19 करेगा, 2 9 जा 18 करूंगा, एक बचेगा, 2 8 2 9 जा 18 करूंगा, एक बचेगा, 2 4 जा 8 करूंगा, एक बचेगा, 2 2 जा 4 करूंगा, 0 बचेगा, and then I'm going to place 2 1s are 2, that will be 0। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ मुझे। आपने सिंपल नंबर लेना है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, और आपने उसका एलसीएम बाय 2 लेना है। एलसीएम बाय 2 लेने के ऊपर जो भी रिमाइंडर बचेगा राइट साइड पे रखना है आपने। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास 157 था, 2 7 का 14, 1 बचा, राइट पे 1 किया, 2 8 का 16, 1 आ गया, 2 3 का 6, 1 आया, 2 9 का 18, 0 आ गया, 2 1 का 2, 1 बचा, राइट साइड पे किया, 19 किया, 2 9 का 18 हो गया, 1 बचा, 2 9 जा 18, 1 remainder on the right side, 2 4 जा 8, 1 remainder on the right side, 2 2 जा 4, 0 remainder, and 2 1 जा 2, 0 remainder। क्या यहाँ तक आप लोगों को मेरी सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई हैं बच्चों? ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखा मैंने नीचे से लेकर ऊपर की तरफ एरो लगाया है, इसका मतलब ये कि जो आपने आंसर लिखना है वो फ्रॉम बॉटम टू द राइट, ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो 1 मिल रही है, आई एम गोइंग टू राइट दैट 1। फिर मुझे 2 टाइम्स 0 मिल रहा है, 2 टाइम्स 0 लिखा। 3 टाइम्स 1 मिल रहा है, 3 टाइम्स मैंने 1 लिखा। फिर मुझे 0 मिला और मुझे 1 मिला, और मैंने यहाँ पे बाइनरी रख दिया। ये जो है ना बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बेसिकली ये मैं वेरीफाई करता हूँ कि क्या मैंने ठीक किया है, कि मैंने जो सवाल जो कन्वर्जन की है डेसिमल से, क्या वो ठीक की है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं दोबारा जैसे मैंने डेसिमल टू बाइनरी लिखा था, अब मैं लिख देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब बाइनरी टू डेसिमल में क्या होगा, मैं एक सवाल उठाता हूँ, 1 0 0, 1 3 टाइम्स 0 एंड 1 0। ये मैंने वही सवाल उठाया जो मेरा आंसर आया। आपको ये वेरीफाई कराने के लिए, इससे एक फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक किया है, प्लस आप कन्वर्जन जान जाओगे कि बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में क्या होगा। अब आपके पास ये आ गया 1 0 0 1 1 0 1, जो आंसर आया तो मैंने उसी को बाइनरी उठा लिया। सिंपल तरीकेकार है इसको करने का, वो सिंपल तरीकेकार क्या है। अच्छा एक बात देखो, याद रखो, आप बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हो ना, तो बाइनरी का मतलब है कि एक जगह पर जहां पर आप एलसीएम ले रहे थे 2 से, अब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने सिर्फ प्रोसेस को रिवर्ट करना है। एक प्रोसेस में आप एलसीएम बाय 2 ले रहे थे, यानी डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, एक प्रोसेस में आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। कैसे? आपने देखा यहाँ पे पहला डिजिट 1 है, आप 1 उठाओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, प्लस दूसरा डिजिट 0 है बाय 2, तीसरा भी 0 है बाय 2, चौथा 1 है बाय 2, पांचवा 1 है बाय 2, 6th इज 1 बाय 2, 7th इज 0 बाय 2, प्लस 8 इज 1 बाय 2। मैंने पहले इस स्टेप के अंदर हर डिजिट को उठा के 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जल्दी से बता दो, अगर है तो मैं रिपीट करूँ। कोई सो तो नहीं रहा ना भाई? इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहा कि कोई सो रहा हो? जाग नहीं सकते? ठीक है,
So this is the first step of writing each by writing each number and multiplied by 2. ये हमने पहला काम किया. In the second step, we are going to raise the power of 2 from 0 till the last number. हमने ना 2 की पावर लगानी है. ठीक है, और हमेशा 0 से लगानी है. 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें इसको लेके जाना है. व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेप? ये तो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है. 2 की पावर 7, याद रखो 2 की पावर 0 है तो वो 1 होगा. 2 की पावर 1 है तो 2 होगा. किसी भी नंबर पे पावर 1 होगा वो नंबर वापस आ जाता है. 2 की पावर 2 है 4 होगा. 2 की पावर 3 8 होगा. 2 की पावर 4 16. 5 इज, जल्दी बताओ क्या होगा? 5 का क्या होगा? 64. 64 में 32 होगा. हमारे पास 10 मिनट रह गए, तो मीटिंग एंड होने से पहले हम इसको जल्दी से निपटाते हैं. बेटा वाई मल्टीप्लाई प्रोसेस है ना, हमारे पास कन्वर्जन का एक मेथड है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, तो फिर हमें उसी को फॉलो करना होगा. तो ये 32 हो जाएगा. ठीक है, और फिर 6 32 और फिर 64 और फिर 128. ये बेसिकली डबल हो रहा है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये डबल हो रहा है. तो बस आसान सा आपने ये करना है. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 128 था, हम 128 लिख देते हैं. प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 है. 2 की पावर 5 32 है. 2 की पावर 4 ये यहाँ लिखना था, मैंने गलती से थोड़ा यहाँ लिख दिया. तो 2 की पावर 4 होता है 16, प्लस 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस 2 की पावर 2 4 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 2 होगा, और 1 इंटू 2 की पावर 0 1 हो जाएगा. अब हमने क्या करना है, हमने इन नंबर्स को 1 मल्टीप्लाई बाय 128 लिख देंगे. 0 64 जा 0 हो जाएगा, 0 32 जा 0 हो जाएगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा, 1 8 जा 8 हो जाएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा. यानी जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सिंपल 0 होंगे. यानी ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, और इसका कुछ नहीं हो सकता. बाकी जो नंबर है हम उसको ऐड कर लेंगे. अब आपके पास देखो 128 तो एक आ गया. ठीक है, अब आपके पास 8 और 4 12 और 1 13. 13 और 16 आपको कितना देगा? ये आपको देगा 29. और जब आप 128 में प्लस करोगे 29, तो 8 और 8 16 होता है. 1 9 की वजह से 17 हो जाएगा. 1 कैरी चला जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 1 वापस आ जाएगा. तो यहाँ आपने देखा 128 और 128 और सिंपल 29 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 157 आंसर आएगा. तो देखो मैंने एक ही सवाल को उठाया, और उसी एक ही सवाल से आपको मैंने डेसिमल कन्वर्ट करके दे दिया बाइनरी में, और फिर जो रिजल्ट आया था उस बाइनरी को कन्वर्ट करके दे दिया डेसिमल में. तो अच्छी चीज ये हो गई कि आपने एक ही क्लास के अंदर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी की, और बाइनरी से डेसिमल की आपने कन्वर्जन भी सीख ली, और आपका रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया. सही है जनाब. तो यहाँ तक जो जो मैंने आपको बातें बताई समझाई, क्या आपको ठीक से समझ में आई? ये वाला आप चाहो तो जल्दी से जो स्क्रीन आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये काम आपने कॉपी में करना है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल. और फिर मैं आपको इसका होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क फिर आप दोनों कन्वर्जन्स का करोगे. आई एम गिविंग यू एन इंस्ट्रक्शन, आई होप दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट. आपने ये जो काम आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है इसको कॉपी में करना है. ठीक है, ये एग्जैक्टली जैसे व्हाइट बोर्ड पे काम हुआ ये वैसे ही मैंने आपको करवाया है. डेसिमल से बाइनरी की हेडिंग डाल के 157 का पूरी कन्वर्जन करेंगे आप. ठीक है, और फिर बाइनरी से डेसिमल की नेक्स्ट पेज पे यानी उसके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और ये वाली करेंगे जो राइट साइड पे होगी. ये दोनों काम होने के बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ दैट यू विल डू एज योर टास्क, तो फिर वो आप एज एन होमवर्क करोगे अपना. आर द इंस्ट्रक्शंस क्लियर टू यू? इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं आपको बच्चों, जो मैंने आपसे कही है कि आपने करना क्या है? यू हैव अ टाइम टिल हियर.
ओके, तो ठीक है, तो आप जल्दी से ये वाला बोर्ड से कॉपी करो और फिर मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपने करना। मैं पोस्ट कर देता हूँ जो क्वेश्चंस हैं आपको करने के लिए, वो क्वेश्चंस फिर आप उसको कर लेना। पहले आप ये वाला काम करो, बिकॉज वी हैव अराउंड ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर द मीटिंग। सो आप जल्दी से ये वाला काम पहले कॉपी कर लो, एंड वंस यू आर डन विद द कॉपी सो इन्फॉर्म। ये वाला काम कॉपी कर लो। Aisha, very good. If you are done, what about the other students? All should have done this and then inform me. आप पहले सब कर लो फिर मुझे बताओ। Done. ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आप करेंगे। जितना कुछ आज पढ़ाया समझ में आया आप लोगों को सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बीच में? तो मैं ये स्क्रीन शेयर हटा दूँ और आपको आपका होमवर्क बता दूँ। अच्छा जी, so now you can see that you have 2 tasks to do. You will be having the activity 1.1। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे एक एक्टिविटी 1.1 आ रही है और उस एक्टिविटी 1.1 का आपने जो क्वेश्चन करना है वो करना है DGMPS। DGMPS, तो मैं उसको एनोटेट कर देता हूँ, DGMPS। तो आपने कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। डी जी एम पी एस। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक है, तो फिर आप नंबर सिस्टम कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेटा जितना भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है ना, कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा है वो सारा का सारा आपका होते ही नंबर सिस्टम 0 और 1 पे, बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। कंप्यूटर नहीं समझता। मैं आपको आगे वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि आप जो ए इनपुट करते हो ना, वो ए बेसिकली बराबर होता है 1 और 5 टाइम्स 0 1 1 2 4 8 16 32 64 120, हाँ 64 है ना। तो 1 2 3 4 5, हाँ। तो आपका जो पार्ट आर और एस नहीं है जो मैंने हाईलाइट किए ना, हाईलाइट हो रहे हैं, DGMPS, ये करने हैं आपने। DGMPS, ये आपने करना है। क्या ये क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। सर आपने आर पे लगाया था, आपने डी डी सी एन की आर पे। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा हो। ये बोलने बोलने में जो है ना गड़बड़ हो गई। DGMPS है तो आर नहीं है, एस है। मैंने आर पे लगा दिया, मैं इसको हटा दूँ। थैंक यू बेटा फॉर द करेक्शन। सो DGMPS ये आपने कहा।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मुझे बता दो, फिर मैं अगले वाले का आपको बता दूँ। ओके, नेक्स्ट वाले का है DGLMO। DGLMO next you have is DGLMO। DGLMO ये नेक्स्ट है एक्टिविटी। जो नेक्स्ट वाली है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये तो 1.1 थी ना, अब हम आ जाते हैं अगली वाली पे। हमारे पास 1 मिनट से कम रह गया, बस मैं जल्दी से आपको ये बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो विल हैव फिनिश द क्लास।